Hello friends, today we are going to study about capacitor, which is the subtopic of electrostatics which you know. Now, we have to discuss in this lecture about capacitor. What is a capacitor? Capacitor is a device which is basically used to store electrical energy, or it can be defined as it is a device which is basically used to store charges. Because charge is nothing but what if you store certain charge inside a capacitor, it will be nothing but what you are storing certain electrical energy. Therefore, capacitor can be defined as it is an electronic device which is used to store electrical energy, okay, or charges. Then, if you see this word capacitor, it's just similar to resistor, which you have studied in 11th class. What is resistor? The symbol for resistor is R. What is the symbol for resistor? That is R. And what is this definition of resistance? This is an electronic device which is used to oppose the current, okay, or to regulate the current, which we have seen. And what is the formula for R? V upon I, where V stands for potential difference and I is the current. And the property to regulate the current is basically called it as resistance. The name of device is resistor and the property is resistance. But over here, when we see, here we have a device called capacitor, and ability to store the charge will be called it as capacitance. तो पहले हमने क्या देखा था? रेजिस्टर जो करंट रेगुलेट करने के लिए यूज होता है, जो किस लिए यूज होता है? टू रेगुलेट द करंट. सिंबल था आर, यूनिट था ओम. फिर उसका प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट इज बेसिकली कॉल्ड इट एज रेजिस्टेंस. Over here, the name of the device is what? Capacitor, and its unit is farad. What is the symbol of this capacitor? We will see it. The symbol for the capacitor is nothing but what? Like this. This is the basic symbol of capacitor. If we draw parallel lines, then this will be basically called it as capacitor. This is the symbol. And in 11th class, we have seen what is resistor. What was the symbol for that resistor? This is the symbol for capacitor. And what is the symbol for resistor? That was like this. Symbol is R. The unit was ohm. Exactly. Over here, this is what capacitor. Symbol is like this. Okay. And the storing ability of this capacitor, the storing ability of the charges, मतलब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट विल बी कॉल्ड इट एज कैपेसिटेंस. तो स्टोर करने के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस. यहां पे हो गया रेजिस्टेंस इज आर, यूनिट इज ओम. ओके, सिंबल इज लाइक दिस. Okay, now we have seen what is a capacitor. Capacitor is a device which is basically used to store electrical energy. Symbol is represented like this. Okay, now we will see how we can form a capacitor. If we see, if we have a plate, one plate, positively charged plate, conducting plate basically, and we have another parallel plate which is negatively charged, then the charge on this plate will be Q, and the plus Q, and the charge on this one will be minus Q. Okay, the potential at this one, plate 1, is V1, the potential at this plate is V2. Then how can we make a capacitor? If we have two conducting plates separated by an insulating material or dielectric medium, this type of setup is basically called it as capacitor. कैपेसिटर मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है और वो सेपरेटेड है बाय किस इंसुलेटिंग मटेरियल, देन दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड इट एज कैपेसिटर. दैट विल बी कॉल्ड इट एज कैपेसिटर. तो यहां पे पहला प्लेट P1 है और दूसरा प्लेट P2 है. तो P1 को आपने पॉजिटिवली चार्ज किया है और इसको नेगेटिवली चार्ज किया. सॉरी, इट विल बी इनवर्ड्स. सॉरी, इट शुड बी इनवर्ड्स because unlike charges attract each other. Yeah, exactly. By this we can say that this will be negatively charged, this will be positively charged. Okay, then this is the setup for the device. Two conducting plates. See this, it can be one plate, this can be second plate. Then
This will be what? If these two are what? Conducting plate and separated by an insulating material. Air is also an insulating material. Therefore, this type of setup is also called it as, this is a capacitor. This is a capacitor. So this type of setup is basically used to make a capacitor. There are different types of capacitor. We will see it later on. Then over here, this is basic setup of a capacitor. Now we will see what is the use of this capacitor. कैपेसिटर की यूज क्या है? आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेन में जब आप जाते हो तो जो फैंस होते हैं वो स्टेडी पोजीशन पे होते हैं. इनिशियली हमें उसे टॉर्क देना पड़ता है, तो हम उसे मूव करते हैं, और जब हम मूव करते हैं तो वो मूव मोशन में आ जाता है. ओके, बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे मोटर है, पंप है, जो हम फार्म्स में यूज करते हैं, शेतात वापरतो अपन. तो उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली हमें बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होती है. तो ये करंट आएगा कहां से? एंड दैट इज दिस एनॉर्मस करंट, वी टेक इट फ्रॉम कैपेसिटर, और कॉमन लैंग्वेज में उसे कंडेंसर भी बोलते हैं. आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने बोला होगा इस फैन का कंडेंसर खराब हो गया है, मोटर का कंडेंसर खराब हो रहा है, हो गया है, इसलिए अभी मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है. व्हाट इज दैट कंडेंसर? That condenser is nothing but what? Capacitor. It initially stores the charge. वो चार्ज को स्टोर करता है और स्टार्टिंग में एट अ टाइम हैवी फ्लो ऑफ करंट देता है, जिसकी वजह से वो मोटर स्टार्ट हो जाती है, वो फैन स्टार्ट हो जाता है. और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर हम किसी चीज को मूव करें तो इनिशियल स्टेज में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बाद में उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. गाड़ी है, स्टडी है, तो अगर आप उसको धक्का मार रहे हो तो इनिशियली आपको उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. तो यहां पे भी इस मोटर को, फैंस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली एक हैवी फोर्स चाहिए. फैन के केसेस में हैवी टॉर्क चाहिए. तो ये टॉर्क आएगा कहां से? उसके लिए तो ज्यादा करंट चाहिए. तो इतना करंट कहां से मिलता है? वी गेट दैट करंट बाय दिस कैपेसिटर, एंड अदर नेम ऑफ द कैपेसिटर इज condenser. Exactly, the name is condenser. Then, और आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कंडेंसर के बारे में. तो इनिशियली जो करंट प्रोवाइड करने का काम करता है, तो टेक्निकली उस कंडेंसर को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर. और उसके चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. व्हाट वी से? कैपेसिटेंस. तो ये बेसिकली कैपेसिटर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्यों यूज होता है? इनिशियली उसको स्टार्टअप करने के लिए जो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, वो हमें कंडेंसर से मिलती है. आपने मोटर में एक बटन पुश करके हम दबाते हैं, तो वो जब बटन दबाते हैं मोटर स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है? वो कैपेसिटर से एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है टू स्टार्ट दैट मोटर. तो अभी आपको क्लियर हो गया ये कंडेंसर और कैपेसिटर का क्या यूज है. इनिशियली जब हमें बहुत एनॉर्मस करंट चाहिए, तो नॉर्मल सप्लाई से हमें उतना करंट नहीं मिलता है, तो हम उसे क्या करते हैं? कैपेसिटर में पहले वो करंट स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और इनिशियली जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें जरूरत है, तो जैसे ही हम बटन दबाते हैं, तो वी गेट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम दैट कंडेंसर. एंड कंडेंसर इज नथिंग बट व्हाट? एग्जैक्टली, दैट इज कैपेसिटर. देन if we see the potential across this two is V. What will be this V? That will be V1 minus V2, because there, here we will be having negative potential, two negative charges. Here we are having positive potential. The net potential V is equal to V1 minus V2. Now this V is directly proportional to Q. This V is directly proportional to Q. You know that. What is V? Potential difference between these two plates. Q is the charge in between these two. Then V is proportional to Q. But we know that whenever we remove a proportionality sign, we take a proportionality constant. And what is that proportionality constant over here? This is V is equal to Q upon C. Means that constant is 1 upon C. Then what will be this C? C is equal to Q upon V, and this C is nothing but what? Capacitance. This is basically capacitance. C is called it as capacitance. Q is the charge, V is the potential difference across two parallel plates. Then what is the unit for charge? That is exactly coulombs.
What is the unit for potential difference? That is volt. Then 1 coulomb per volt will be nothing but what? A newer unit which will be called it as 1 farad. F stands for farad. This F stands for farad. Is it okay? Now we got what is capacitance. It is a property or the ability to store the charges. मतलब उस property charge store करने की property को हम क्या बोलेंगे? Capacitance. Formula is Q upon V is equal to 1 upon 1 coulomb upon volt. Coulomb per volt can be written as a newer unit called it as farad. Farad is a unit for capacitance. Symbol is C. Property is capacitance. कैपेसिटेंस स्टोर करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटेंस. सिंबल है सी, यूनिट है फैरेड. एग्जैक्टली. देन नाउ वी हैव सीन बाय दिस व्हाट कैन यू से? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. It is directly proportional to Q and inversely proportional to V. It makes a sense that if the number of charges inside this plate will increase, then capacitance will also increase. What can we say about V? If potential difference increases between these two plates, capacitance decreases because this capacitance is inversely proportional to potential difference. It is inversely proportional to potential difference. Now we will see the PPT on this part. Okay? First of all, now you understand what is a capacitance. ये एक डिवाइस है जो इनिशियल स्टेजेस में जो एक्सेस ऑफ करंट हमें चाहिए होता है वो हमें इस डिवाइस से मिलता है. Okay. Now we will see what are the systematic or appropriate definitions of this one. Okay, and what are they? First of all, capacitor, a device used to store an electric charge, consists of one or more pair of conductors separated by an insulator or a dielectric. And the symbol is this one I shown over here. This is the basic symbol for capacitor. If we see, capacitor basically look like this. You have seen this type of electronic device inside computers, TV, etc. ये जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज स्टोर करके रखता है और जब जरूरत है तब वो हमें देता है. आपने बहुत केसेस में ऐसा देखा होगा, टेलीविजन को आप बंद कर देते हो तो भी उसके अंदर एक लेड लाइट ग्लो करती रहती है. वो क्यों होती है? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है और जब हम टीवी बंद कर देते हैं तो डिस्चार्ज होने लगता है और तब तक वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वहां पे देता है. बट द बेसिक फंक्शन कैपेसिटर का क्या है, कंडेंसर का क्या है? एक्सेस ऑफ करंट इनिशियल स्टेज पे प्रोवाइड करने का. एंड सी दिस, दीज आर व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है, दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. ये डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर है जो मैंने आपको शो किया है ये सेकंड पिक में. ये सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ कैपेसिटर है. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट कैपेसिटेंस. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज. कितना ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी है. आप बाइक को कैसे उसके पावर के हिसाब से करते हो कि 125 सीसी, 150 सीसी, 180 सीसी कितनी उसकी पावर है, वैसे कैपेसिटर की कितना पावर है, कितना मतलब कितना एबिलिटी, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे हम किससे नापते हैं? द प्रॉपर्टी इज कैपेसिटेंस. नेम ऑफ डिवाइस इज कैपेसिटर एंड द प्रॉपर्टी इज कैपेसिटेंस. एग्जैक्टली. द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, or we can say it as electrical energy. The ratio of the change in an electric charge in a system to the corresponding change in its electric potential is C is equal to Q upon V. I told you what is Q. Q is the charge on that plates. V is the potential across that two plates. And C is capacitance. By this, what can you say? C is directly proportional Q and inversely proportional to V. Exactly. अगर हम charges बढ़ाएंगे तो capacitance increase होगा. अगर हम potential difference increase करेंगे तो capacitance decrease होगा. The 1 coulomb per volt is nothing but what? Farad, which is the unit. The conductors 1 and 2 shown in the figure have charges plus Q. See this plus Q charge over here, minus Q here. The potential difference across these two plates is V, which is V1 minus V2. I shown over here. Then
द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू. जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. ठीक है, तो अब यहां पे आपको एक समझना पड़ेगा, जितना कैपेसिटर चार्ज बढ़ेगा उतना कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, जितना पोटेंशियल कम होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. एग्जैक्टली. The potential difference V is the work done to carry a unit test charge from conductor 2 to conductor 1 against the field. As this work done will be proportional to V is proportional to Q and the ratio will be Q upon V. Now see in this diagram, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे ये है. अब अगर हमें यूनिट चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ लेके जाना है, तो इसमें जो हम वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, दैट विल बी एनर्जी एंड दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे वही चीज हमको देखनी है. सी दिस, द वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब वी वर्क डन जो करेंगे वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. एंड then when we remove this proportionality sign, we take a proportionality constant which is C, which is called it as capacitance, which depends on the size, shape, separation of the system of two conductors. Okay, we will see this कि ये capacitance बहुत ज़्यादा factors पे depend करता है. एक तो size कितना है, plates कितने बड़े हैं, shapes किस में है, cylindrical है, spherical है, या वो उस पे भी determine करता है, और separation कितना है. बट इसका derivation हम next lecture में देखने वाले हैं. The SI unit of capacitance is farad. I told you earlier that how it comes. 1 farad is, yeah, exactly 1 coulomb per volt. Dimension is m raised to -1, L raised to -2, T raised to 4, A raised to 2. Then, if we see this thing, a capacitor or has a capacitance of 1 farad. अब आपको define करना है कि 1 farad क्या होगा. So what will be the definition? If the potential difference across it rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने दोनों प्लेट में 1 coulomb of charge दिया, तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा, एंड दिस थिंग इज बेसिकली कॉल्ड इट एज 1 farad. अगर आपने 1 coulomb of charge इंक्रीज किया गिवन दिया कैपेसिटर को, तो दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इट एज 1 farad. If the potential difference across it rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it, मतलब दोनों प्लेट में अगर आपने 1 coulomb का चार्ज दिया, तो 1 coulomb का चार्ज देने के बाद इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 से बढ़ जाएगा. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इट एज 1 farad. Then if we see the next, in practice, farad is a big unit. The most common used units are its sub-multiples. You know that light year is unit for distance. But ये किसके बीच में यूज करते हैं, जब हमें planets के बीच के distance को measure करना होता है. But over here when we see, अगर हमें roads consider करने कितने distance पे है, तो हम kilometers unit यूज करते हैं. वही अगर हमें क्लॉथ मेजर करना है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, मीटर्स यूज करते हैं. ओके, तो अब यहां पे फैरेड एक बड़ा यूनिट है, तो उतना बड़ा यूनिट यूज जनरली नहीं होता, उसमें स्मॉलर यूनिट्स यूज होते हैं, और वो कौन से हैं, वन इज माइक्रोफैरेड. 1 microfarad is equal to 10 raised to power minus 6 farad. 1 nanofarad is 10 raised to power minus 9 farad, and 1 picofarad is 10 raised to power minus 12 farad. Now we will discuss what is the principle of capacitor, how it works. Basically capacitor work कैसे करता है वो हम यहाँ पे discuss करेंगे. Okay? Then see this, to understand the principle of a capacitor, let us consider a metal plate P1 having an area A. Let some positive charge plus Q be given to this plate. Let its potential be V and its capacity is given by C1 is equal to Q upon V. ये डायग्राम मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं. सपोज आपके पास एक ही प्लेट है, एक प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, Q है, तो उसका वोल्टेज V है, तो इसका चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी सिंगल प्लेट की कितनी होगी, C1 इज इक्वल टू, इस सिंगल प्लेट का कैपेसिटेंस होगा C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V.
अब अगर हम आगे कंसिडरेशन करें, नाउ कंसिडर अनदर इंसुलेटिंग मेटल प्लेट P2 हेल्ड नियर द प्लेट P1. ठीक है, P2 हमने P1 के साइड में रख दिया. बाय इंडक्शन अ नेगेटिव चार्ज इन द प्रोड्यूस्ड ऑन द नियर फेस एंड इक्वल अपोजिट चार्ज. देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है. अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कंसिडरेशन करते हो यहां पे तो क्या होगा? ठीक है, अगर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा प्लेट P2 लाया, तो ऑटोमेटिकली इंडक्शन से ऑटोमेटिकली यहां पे सब नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. अगर इस पूरे कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गए तो अपोजिट साइड में क्या आएंगे? या एग्जैक्टली, देयर विल बी पॉजिटिव चार्जेस. करेक्ट, वी विल सी दैट इनसाइड द डायग्राम. पहले हमारे पास एक प्लेट था जिसका कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V है, और पॉजिटिवली चार्ज है. हमने दूसरा प्लेट रखा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. The induced negative charge lowers the potential of P1 while induced positive charge raise its potential. अब यहां पे पहले पोटेंशियल V था, आपने यहां प्लेस किया है, नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव आया. ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? पॉजिटिव वाले को कम करेगा. बट प्लस चार्ज क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा. बट कौन सा चार्ज क्लोजर है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव क्लोज है? नेगेटिव इज क्लोजर. और अगर नेगेटिव क्लोजर है तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा. ओके, we will see in this diagram. See, this is plus, we are placing plate 2 later on. By induction, this inner side of plate P2 will be negatively charged, outer side will be get positively charged. Okay, then ये नेगेटिव चार्ज P1 के प्लेट के पोटेंशियल को कम करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है P1 के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा. बट ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? दैट विल बी नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दे आर क्लोजर टू प्लेट P1. The induced negative charge lowers the potential of plate P1 while the induced positive charge raise the potential. अब हमने यहाँ क्या किया? हमने राइट हैंड साइड प्लेट P को ग्राउंड कर दिया. तो we know that higher potential always move towards lower potential. तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा. तो अब जो पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रेंथ देने वाला था वो तो टोटली चला गया. तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट में और डिक्रीज हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज उसके पोटेंशियल को कम करेगा ना, V के प्लेट P1 के पोटेंशियल को. और अगर V कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? या एग्जैक्टली, वी सीन दैट कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां पोटेंशियल कम हो गया, ग्राउंड करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज ड्रेन हो गया और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया. तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच का, क्योंकि V से ये माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पोटेंशियल कम हो गया तो स्टोर करने का प्रॉपर्टी क्या होगा? Yeah, it will increase. Then, if we see this one, the induced negative charge on P2 stays on it as it bound to positive charge of P1. This greatly reduces the potential of P2, which is shown in figure B. If V1 is the potential on plate P2 due to the charge minus Q, then the net positive potential of the system will be given by plus V minus V1. That will be given by plus V minus V1. The C here, C2 is Q upon V minus V2. If we compare this thing with the first one, what is happening over here? Denominator is decreasing, potential difference is decreasing. By this, what can you say? The capacitance of the second one is more. The capacitance of C2 is greater than C1. क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कम होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे पोटेंशियल कम हो गया. क्यों? क्योंकि हमने सेकंड प्लेट को ग्राउंड कर दिया. तो सेकंड प्लेट को ग्राउंड करने की वजह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सेकंड टाइम में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया. तो बाय दिस, इफ वी हैव टू प्लेट, okay, and if we ground the second plate, then by this process we can increase the capacitance of the कैपेसिटर. हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. किसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं? कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, देन thus the capacity of metal plate P1 is increased by placing an identical earth connected to metal P2. If the conductor are plane, then it is called it as parallel plate capacitor. We also have spherical capacitors, cylindrical capacitor based on shapes. Now see this, there are three types of capacitor according to their shapes. The first one is parallel plate. See this, these are what? Two plates. Okay, there are two plates,
P1, P2, separated by an insulating material or dielectric medium. Blue is represented as dielectric medium. Then this type of setup is basically representing a parallel plate capacitor. सेम थिंग, प्रोसेस फेनोमिनन सेम ही होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा प्लेट आपने रखा या नेगेटिव हो जाएगा. इसको अगर ग्राउंड करोगे तो इसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ड्रेन हो जाता है. करेक्ट. देन सेकेंड टाइप इज स्फेरिकल. सपोज वी हैव अ बॉल, एक हमारे पास बॉल है अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ स्फीयर है, दूसरा बॉल है हॉलो, बीच में गैप है और गैप के अंदर क्या फिल किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो ये दो स्फीयर है, एक छोटा बॉल अंदर की तरफ और उसके ऊपर एक स्फीयर है बड़ा बॉल. तो ये अंदर के स्फीयर को एक पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो इनसाइड ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. बट अगर आप उसको ग्राउंड कर देंगे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज ड्रेन हो जाएगा. एंड दिस टाइप ऑफ सेटअप इज कॉल्ड इट एज स्फेरिकल कैपेसिटर. देन वी हैव सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. फिर हमारे पास कौन से टाइप का कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल है. अब ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स में क्या होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास सेम थिंग होगा, एक सिलेंडर है, फिर हॉलो स्पेस है और फिर बीच में एक और सिलेंडर है और बीच के गैप में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. तो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज बेसिकली कॉल्ड इट एज अ सिलिंड्रिकल वन. तो सेंटर वन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑटोमेटिकली सिलेंडर के इनसाइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. बट अगर आउटर साइड को आप ग्राउंड कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज ड्रेन हो जाएगा. और दिस टाइप ऑफ सेटअप विल बी कॉल्ड इट एज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. इसे हम क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. तो नाउ व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर, वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. व्हाट आर दे? दे आर, फर्स्ट वन पैरेलल प्लेट, second one spherical, and third one is cylindrical capacitors. Yeah, exactly. Today what we have discussed, we will revise it once again. We have discussed about capacitors. Capacitor is an electronic device which is basically used to store the charges. Capacitor क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होता है. इसकी प्रॉपर्टी, स्टोर करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. हम क्या बोलते हैं इसे, कैपेसिटेंस. ओके. तो अब वी कॉल्ड इट एज कैपेसिटेंस. नाउ वी विल सी इट. ओके. तो हमने क्या देखा, वी हैव सीन अबाउट दिस कैपेसिटेंस. तो जैसे अगर हम इस कैपेसिटर के कंसिडरेशन में इसकी प्रॉपर्टी स्टोर करने के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग अ चार्ज. ये कैपेसिटेंस सी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्यू है. अगर चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट अगर आपका इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, बिकॉज दिस टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मींस इफ वी डिक्रीज द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू प्लेट्स by grounding the second terminal, तो क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. Then we know that what is the unit for charge, that is coulomb. वो क्या है, coulomb है. Over here what is the unit, that is volt. Then coulomb per volt can be written as 1 farad, which is the unit of capacitance. Correct. This is what capacitance symbol is, C, unit is farad, unit is farad. तो हमने कैपेसिटेंस देखा, कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका मैकेनिज्म स्टडी किया. व्हाट आर द बेसिक यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, जो जनरली कॉमन लैंग्वेज में हम उसे कंडेंसर भी बोलते हैं, जो फैंस को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं, मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं. आपने घर में आप जाके चेक कर सकते हैं, जो भी फैन अगर किसी ने ओपन किया होगा तो उन्होंने भी चेक किया होगा, उसके अंदर एक कंडेंसर होता है. ठीक है, मोटर्स के अंदर एक सिलेंड्रिकल थिंग होती है. ये कंडेंसर मीन्स अ कैपेसिटर. कैपेसिटर का बेसिक यूज क्या है, इनिशियल स्टेज में हमें ज्यादा करंट चाहिए और उतना करंट हमें प्रोवाइड नहीं होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो वो हम क्या करते हैं, वी यूज दैट एक्स्ट्रा करंट फ्रॉम दिस कैपेसिटर जो स्टोर फॉर्म में है और हमें वो इनिशियली पुश करता है टू स्टार्ट दैट फैन और मोटर. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट हाउ वी कैन कनेक्ट दिस कैपेसिटर्स. देयर आर टू बेसिक टाइप्स, सीरीज एंड पैरेलल, which we will study in next lecture. Thank you, friends.